Dear students, Assalamu alaikum. Today we will study the concept of the correlation. Correlation is a statistical tool which measures the interdependence of two variables. There are two variables x and y, and the relationship between these two variables is called the correlation. There is no any independent variable or dependent variable. The examples of correlation includes the length of iron bar and temperature. Length of iron bar always related to the temperature. जैसे ही आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है लेंथ बार जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है. तो इसका मतलब ये हुआ कि एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी उसी की वजह से इंक्रीज होता है. तो ये रिलेशनशिप जो है ये कोरिलेशन है. अदर वन इज द गैस वॉल्यूम एंड प्रेशर. प्रेशर और गैस वॉल्यूम इनके दरमियान भी रिलेशनशिप है. जैसे ही गैस का वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ होता है तो तब आपका उस वक्त प्रेशर भी इंक्रीज़ हो रहा होता है. तो प्रेशर इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीजेस. इफ़ प्रेशर डिक्रीजेस वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेस. इन दोनों में इन्वर्स रिलेशनशिप है लेकिन रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है जी. नेक्स्ट एग्जांपल है इनकम एंड एक्सपेंडिचर. इसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप है. जैसे इनकम इंक्रीज करती है उस वक्त आपके एक्सपेंडिचर्स भी जो हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं. तो एक वेरिएबल आपका एक्सपेंडिचर है और दूसरा वेरिएबल जो है वो आपका इनकम है. ठीक है जी. ये तो कुछ एग्जांपल्स थी कोरिलेशन से रेलिवेंट. अब ये है कि इस कोरिलेशन को इस रिलेशनशिप को स्टडी कैसे किया जाएगा. हाउ कैन वी डिटरमिन द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स. सो those variables can be studied by the scatter plot. In scatter plot, there are two axes, x-axis and y-axis. This is x-axis and this is y-axis. One variable is measured along x-axis and other is measured along y-axis. For example, height is measured along x-axis. So whenever height is increasing, then weight also increases. Weight is measured along y-axis. For example, height is low, weight is also low. The point is this one. The second person, उसकी हाइट जो है फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज कर गई है पहले से तो उसका वेट भी इंक्रीज कर गया है. ठीक है. थर्ड पर्सन की हाइट कुछ इस तरह से और वेट है. ये हाइट और वेट के अकॉर्डिंग मैं ये डॉट्स यहाँ पे प्लॉट कर रही हूँ. ठीक है जी. ये डॉट्स शो करते हैं. किसी भी डॉट को अगर देखें तो ये उसकी हाइट है और ये उसका वेट है. तो जैसे ही हाइट इंक्रीज कर रही है वेट भी इंक्रीज कर रहा है. तो इस तरह का रिलेशनशिप है. इसके दरमियान में हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो इन सब डॉट्स के क्लोजर गुजरेगी. इस लाइन को हम कहते हैं कि ये लाइन जो है ये कोरिलेशन को शो कर रही है. चूंकि ये पॉजिटिवली हाई हो रहा है तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन को शो करेगी. ठीक है जी. तो ये जो डायग्राम है दिस होल diagram is called scatter plot. Okay? So scatter plot is basically a plot which measures the relationship between two variables. Scatter plot displays the data of two variables in 2D plane. Now we will study the positive correlation. The example of positive correlation includes the ice cream sales and temperature. You know, whenever temperature increases, the sale of ice cream also increases. So temperature is measured along x-axis and ice cream sale is measured along y-axis. And all these dots are representing basically the sale along with the temperature. And a straight line is drawn in between all these dots. This shows that there is a positive relation because it goes upwards. ठीक है जी. तो पॉजिटिव रिलेशन तब होगा जब एक्स एक्सिस पे जो डॉट्स हैं वो जैसे जैसे एक्स की तरफ मूव कर रहे हैं वाई की तरफ भी वो अपवर्ड्स जा रहे हैं. एज एक्स इंक्रीजेस वाई ऑल्सो इंक्रीजेस. इट मीन्स देर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स. नेक्स्ट इज द नेगेटिव कोरिलेशन. Negative correlation example is the birth rate versus income. As income increases, birth rate decreases. It means in some countries which are richer have the lower birth rate. So the trend is downwards. It comes from the left side upwards to the right side downwards. So this is called the
negative correlation. The other example is the temperature and elevation. जैसे जैसे आपकी एलिवेशन इंक्रीज करती जाती है, टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाता है. इट मीन्स अगर आप हिली स्टेशन पे जाएं तो आपका एलिवेशन जो है वो हाई होगी और आपका जो टेम्परेचर है वो लो होगा. ठीक है, जैसे कि ये डॉट आपका शो कर रहा है कि एलिवेशन हाई है और आपका टेम्परेचर जो है वो 40 से भी लेस है. जैसे जैसे एलिवेशन कम हो रही है, जैसे 20 पे है तो 2.0 के पे है, तो आपका जो टेम्परेचर है वो हायर साइड की तरफ जा रहा है. तो एलिवेशन और टेम्परेचर में इन्वर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, और जब भी इन्वर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा तो कोरिलेशन जो है वो नेगेटिव कोरिलेशन होगी. और अगर दो वेरिएबल्स उसमें कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो ना अपवर्ड्स ना डाउनवर्ड्स, सब स्कैटर्ड हैं एक राउंड शेप में. इट मीन्स दिस इज कॉल्ड द जीरो कोरिलेशन. यहाँ सभी के सब एक स्ट्रेट लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तब भी जीरो कोरिलेशन है, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो वेरिएबल मेजर किए जा रहे हैं वो एक दूसरे को इफेक्ट नहीं कर रहे, उनमें कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर रहा. इफ एक्स डज नॉट इफेक्ट द वाई वेरिएबल देन देर इज नो रिलेशनशिप. रिलेशनशिप उसी वक्त एग्जिस्ट करता है जब एक्स और वाई जो है वो एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे हों, एक दूसरे पर रिलेशनशिप रखते हों. कोरिलेशन की जो वैल्यूज़ हैं वो -1 से +1 के बिटवीन एग्जिस्ट करती हैं. -1 उस वक्त होंगी when all the dots lies on the straight line, perfect negative correlation, और perfect positive correlation. जब सबके सब डॉट स्ट्रेट लाइन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे होंगे तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव कोरिलेशन होगी. जब आपकी डॉट्स उन लाइंस के अराउंड होंगे लेकिन लाइन पॉजिटिव और नेगेटिव को ही शो करेंगी, लेकिन थोड़े से डॉट्स जो है वो लाइन से अवे चले जाएंगे. जब भी वो अवे होंगे इट मीन्स देर इज स्लाइटर लोअर रिलेशनशिप, तो इसे हम कहेंगे हाई नेगेटिव एंड हाई पॉजिटिव. ठीक है जी, परफेक्ट से थोड़ा निचला लेवल है, इसलिए इसको हमने हाई नेगेटिव और हाई पॉजिटिव कहा है. उसके बाद है कि अगर स्ट्रेट लाइन से काफ़ी दूर हों डॉट्स, तो इसका मतलब ये है कि आपकी रिलेशनशिप तो एग्जिस्ट करता है, कोरिलेशन तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो आपकी लो पॉजिटिव और लो नेगेटिव होगी. और इसी तरह से जब रिलेशनशिप एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है तो सब एक क्लाउड की फॉर्म में सेंटर में लाई करेंगे. नो पॉजिटिव कोरिलेशन, नो नेगेटिव कोरिलेशन, सब जो हैं वो एक सेंटर में स्कैटर्ड होंगे. The relationship between variables is described in two ways. First one is the positive, negative और zero. यानी कि आपके पास होना चाहिए कि रिलेशनशिप की टाइप कौन सी है, क्या वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है. दूसरा ये है कि क्या वो लीनियर है या नॉन लीनियर है. ठीक है जी, तो ये टू टाइप्स जो हैं वो आपके डिस्क्राइब करते हैं रिलेशनशिप को. अब मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगी, सेल्स ऑफ आइसक्रीम एंड एयर कंडीशनर. ठीक है जी, अली कलेक्टेड डेटा ऑन द सेल्स ऑफ आइसक्रीम एंड एयर कंडीशनर. किसी एक एरिया में एक डेटा कलेक्ट किया गया, चाहे वो हम लाहौर ही सपोज कर लेते हैं कि लाहौर के किसी स्टेशन से हमने तमाम समर के जो एयर कंडीशन की सेल है उसको मेजर किया किसी पर्टिकुलर डे पे, और उसी दिन हमने आइसक्रीम की सेल को भी काउंट किया. तो यहाँ से पता चला कि आइसक्रीम की सेल जैसे ही इंक्रीज होती है उसके साथ साथ एयर कंडीशनर की सेल जो है वो भी इंक्रीज हो रही है. इसका मतलब दोनों में रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, और डेफिनेटली ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है क्योंकि दोनों की सेल ही इंक्रीज कर रही है और दोनों की सेल ही इकट्ठे ही डिक्रीज हो जाती है नॉर्मली इन विंटर्स. तो इसका मतलब ये है कि कोई एक तीसरा वेरिएबल है जो कि सीजन है, टेम्परेचर है, जो इनको इफेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से दोनों की सेल इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है. ये जो दो वेरिएबल्स हैं, सेल ऑफ आइसक्रीम एंड सेल ऑफ एयर कंडीशनर, ये कोरिलेटेड हैं, पॉजिटिवली कोरिलेटेड हैं. लेकिन जो थर्ड वेरिएबल इनको इफेक्ट कर रहा है, दैट थर्ड वेरिएबल इज कॉल्ड द कंफाउंडिंग वेरिएबल. ये जो थर्ड वेरिएबल है इसकी स्टडी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे कि इसके साथ कैसा इसका इफेक्ट आ रहा है. आज के लेक्चर में जो हमने स्टडी किया वो तो ये स्टडी किया कि रिलेशनशिप कितनी तरह के होते हैं, 3 तरह के. नंबर 1 द पॉजिटिव कोरिलेशन, द नेगेटिव कोरिलेशन एंड जीरो कोरिलेशन. Positive correlation exists if x increases, y also increases. Negative correlation if x increases, y decreases. यानी एक का इंक्रीज करना है दूसरे का डिक्रीज करना है. दिस इज कॉल्ड नेगेटिव कोरिलेशन. और जीरो कोरिलेशन
if there is no relationship exist between these two variables. And second thing which we will study is the scatter plot. Scatter plot जो कि आपको हेल्प करता है कि किस तरह आपने इस रिलेशनशिप को स्टडी करना है.